Yes, Shashank, very good morning. Very good morning, Shashank. How are you? How are you? Hello? Please all write down the question what you mean by fundamental rights. I am audible to all of you. Show me your thumbs audible to you. Show me your thumbs audible. Yes. Write down the question what you mean by fundamental rights and how many fundamental rights are there? Yes. What do you mean by fundamental rights and fundamental rights are there? Explain it. But this minute will be very so write it down. Yesterday we were doing a revision of the chapter fundamental rights and duties and that principles of state policy. We were discussing about. So please tell me. Yeah. Anyone? Shivangi? Avni? Yes, ma'am. Priyanshu? Yes. Please Yes. repeat question. All of you are Yohan, Harsh, Harsh. Tell me, what do you mean mental rights? And please repeat Bolo. question. Oh, how answer the question? And you mean fundamental and fundamental. How many fundamental? Fundamental rights are an essential element of every democratic country. Okay. And they are very essential for us. Huh? Fundamental rights were included in the constitution because they were considered essential for the development of prosperity of every individual. Yes, it is the essential for development of the prosperity of every individual and to preserve the human dignity. To preserve the human dignity. So we have got in the democratic country, we have got the fundamental rights, an essential element of for human being and preserve the human dignity. Since we were denied most of the civil and political rights by the Britishers, हमारे बहुत सारे civil और political rights जो है ब्रिटिश के द्वारा वायलेटेड किए गए थे, तो इसलिए भी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने हमें इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड कराया है. Isn't it? How many fundamental rights are there? Can you tell me? How many fundamental rights are there? There are 6 fundamental rights. Tell me. And there are six Six fundamental What rights. are they? Ma'am, Ma'am, six first right fundamental to rights. property, second right to freedom, third right Very against good. exploitation, fourth right to freedom of Yes, religion. listen, Fifth, don't move so fast. You are going to write in the copy one by one. Point wise, you are going to write in your copy. okay, ma'am. First fundamental is right to equality. सभी बच्चे लिखिए right to equality first. Right to equality में क्या क्या होता है? Right to equality क्या क्या? For what right to equality? Tell me. Equality before law, provision of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, and place of birth.
isn't it? Then equality of opportunity in matters of public employment, abolition of untouchability, abolition of titles. These are all the right to equality. Have you written? If you will be asked about the right on the 6 fundamental rights, then you will write the right to equality, right to freedom, right against exploitation. But if simple one question will be asked, that write down about the right to equality and what are the provision of right to equality, then you are going to write this point wise. So are you to write it now? Are you able to write now? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ. ओके. तो हमने इतना जो देखा राइट टू इक्वालिटी में, अंकित अंकित राज, yes, listen, you're not answering me. Listen first. Hello. Yes, Shashank. ma'am. Yes, ma'am. Shashank. Yes, ma'am. Ankit, Shivangi, I'm asking one question. Abolition of untouchability and abolition of titles comes under which fundamental rights? Right to equality. Abolition of Ma'am, right to untouchability. equality. First fundamental right, right to equality. Right to equality. Right to Right to equality. equality. And next my question is equality before law come under fundamental. Equality before law comes fundamental right. Right to equality, ma'am. Equality before law. Right to equality. The first fundamental right. I'm twisting and you're not able to answer. Yes. Now, equality of opportunity in matters of public employment comes under which right to which fundamental Right to rights? equality. Which fundamental? Right to Right equality. to equality. Should I ask questions with you? We are moving to the next fundamental right. अब आपको सबको क्लियर हो गया ना fundamental right to equality. We are moving to Yes, ma'am. right to freedom. All of you listen. Please go through the point. Freedom of speech and expression comes under which fundamental rights? The fundamental Right to right. freedom. Right to freedom. Right to fundamental Right to right Right to freedom. freedom. Okay. Right to education comes under which fundamental rights? Right to to education. Right to freedom. Right to freedom. इसके provinces में. Yes. Now we'll talk about freedom to reside and settle in any part of India. Ma'am, right to freedom में ये आया. भी right to freedom में Comes है. under ये भी fundamental. राइट टू फ्रीडम में आता है. Right to freedom. Yes. कल हम डिस्कस कर रहे थे फ्रीडम एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम टेम्पल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, isn't it? The all right to also including provisions. हमने इतने सारे आधार दे दिए हैं, इसका मतलब नहीं कि आपने यूनियन कर लिया, आप एसोसिएशन बना लिया, बट कुछ नहीं। क्या इस विजन है, प्रावधान है, कल बात. What is the meaning of provision? What meaning of provision? प्रावधान. What is the what meaning of प्रावधान. प्रावधान. Pravdhan. Oh my. So when we have got so much of right to freedom, it also some provision. That provision is protection in risk conviction of an offense. ठीक, अगर आप किसी भी तरह की आपको कोई मिल रही है तो वो क्यों मिल रही है?
Your voice is not coming clearly. Your voice is Ma'am, not your coming clear. voice is Now not clear. it's coming. Yes, coming. Yes, ma'am. Not coming, no. Yeah. Protection, life, personal liberty. If It you are is going to come. form any SO, if you are going to form any union, or yes, if you are moving around the territory of the country, that means you also have the protection of life and personal liberty. आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप अगर आपने अभी डिसाइड किया कंट्री के कुछ ऐसे जगह में जाने का जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, तो उधर आपके पर्सनल लिबर्टी को कौन हेल्प करेगा, इसकी भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी कल डिस्कस किया था। कैन यू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ यू? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक्सप्लेन इट मैम इसके तहत मैम आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो मैम बिना किसी प्रूफ के आप किसी को भी और अरेस्ट नहीं कर किसी सकते हो। कोई प्रूफ चाहिए, मैम बिना वारंट चाहिए। प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रूफ और वारंट चाहिए हो अरेस्ट कर। मैम अरेस्ट वारंट चाहिए होगा तभी आप कर सकते हो। Okay, now can you tell me, right to education is for all of us, right against the exploitation, very great thing। सुनिए बच्चों, हेलो, 2 पॉइंट Yes, तो आपको ma'am. पता चल गया, यस मैम। आपको राइट टू इक्वालिटी पता चल गया, राइट टू फ्रीडम पता चल गया, बट अभी एक ये पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अब वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इफ आपको कोई भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, यू हैव द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। तुम कोई अगर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, वो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या, ये मैंने ये भी डिस्कस किया था, और कोई बच्चा हो तो बता दो, एनीवन एल्स। मैम आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को फोर्स करके लेबर नहीं करा सकते हो बिना वो भी सैलरी के। और सेकंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहता है कि आप किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को आप कोई भी गंदा काम नहीं करवा सकते हो, hazardous occupations। No, if I'll ask one question, if poor boy of age of 12 years or age of 14, चलो हम boundary line ले, is forced to work in dhaba, are forced to work in mines, coal mines, this forced work comes under which? Ma'am, child labor. Ma'am, child labor. राइट अगेंस्ट मैम labor। चाइल्ड लेबर, Right against exploitation, child labor के एक्सप्लॉयटेशन तहत। हो रहा है मैम। राइट Yes, अगेंस्ट right. एक्सप्लॉयटेशन। Exploitation हो रहा है। Right against the exploitation, yes, ठीक है। Okay, so if listen, my motto is to tell you, if any question may be asked from this chapter, देखिए, the question can't be asked straightforward, the question will be always twisted. Why we are discussing this point? We are discussing this point to know the meaning of certain things and how the question can be asked twisted. If you know the point, if you know the provision, if you know the fundamental rights very properly, then only you are able to answer it. Okay, यस मैम। this is what you have done. Yeah, this do you know part, can anyone read? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Read ma'am. out. Right to information was given the status of a fundamental right in 2005. This right Yeah. enables people to seek information from the government departments and institutions on matters affecting the society. However, information may be denied if it is likely to impair the security of the country. Right to information, you know, we have studied one thing, under right to information, यस मैम। हाँ बताओ, जो एप्लीकेशन Right to लिख करके देते थे, अरे एप्लीकेशन लिख करके किसी एक जगह पे अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, या Yes, बहुत ma'am. सारी गंदगी, क्या था बताओ, एप्लीकेशन लिख करके आपने उसको
एप्लीकेशन लिख के मैम उसको हम लोग को सीएम या फिर किसी बड़े इससे कंप्लेंट के दे पास सकते भेजते हैं। हैं और उसमें उसको आप क्या चाहे तो कहते अपना हैं? नाम डाल भी उसको क्या सकते हैं और कहते हैं? नहीं भी डाल सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स को लेके लिख सकते हैं मैम। वो आपको फ्रीडम मिला है कि आप लेटर कहीं भी मैम, किसी लेटर को लिख भी सकते हैं। कंप्लेंट लेटर Which दे letter? सकते That हैं। letter calls what? Ma'am, PIL. PIL. Very good. Clap all of you. Clap. PIL. PIL. Yes. Public litigation. What is the meaning of Public PIL? and मैम Ma'am, Public public litigation. information litigation. आ गया आपका? आ गया Yes, आपका ma'am. राइट टू इंफॉर्मेशन में ये चीज? यस मैम। देखो ना, तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, मगर मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं, ma'am. ठीक है? Yes, आप लोग ma'am. एकदम रेडी रहिए इस चीज के लिए। देन दिस राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स में कब आया था दिस स्टेटस? 2005। 2005 में। Ma'am, 2005 ma'am. 2005. This right here, हाँ, people to seek the information from the government departments and institution. Now, right to freedom of religion is one of the again the great thing जिसके चलते शायद हम लोग अपनी लॉ को जला सकते हैं, अपनी मशाल को जला सकते हैं, और ये है हमारा यस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? मैम राइट टू फ्रीडम मैम ऑफ इसके रिलीजन तहत मैम, हम लोग किसी कोई भी भी धर्म religion को मान follow सकते कर हैं। सकते हैं, क्योंकि हमारी मैम, ये किसी भी रिलीजन को secular फॉलो कर country सकते है, हैं। तो वो हर रिलीजन को बढ़ावा देती मैम, है। किसी भी रिलीजन को प्रमोशन करने के लिए कोई आप टैक्स किसी नहीं भी लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, You can propagate and practice any religion which you want to. It doesn't. No one is going to stop you to going to mazar or gurdwaras, You are free to churches. follow your religion which you want. Yeah, combinedly you can go and attend, isn't it? अब मुझे किसी ने कह दिया, if we have been to Haji Ali and those people are not coming to Gurdwara, or if those people are not coming to temple, is this question can be asked? नहीं, वे तो नहीं आते हैं, तो हम क्यों जाएं? ऐसी बातें आती हैं? नो ऐसी मैम, बातें आती हैं? No, ma'am. मैम. आती है। नो मैम। नो आनी नहीं मैम. चाहिए। मैम हम जो बच्चे हैं। जो लोग सही से जानते नहीं है या फिर जो बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, वही लोग आवाज उठाते हैं इसके यस, लिए। हाँ हाँ, ये है। इसमें बदमाशी करने की बात नहीं होती है। कहीं ना हम बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। वी बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड। वी थिंक दैट गॉड इज अवर ओन। Even we keep the God in our own hands, in own temples. We think that God is only in my temple. But you know, God is present everywhere. God is present everywhere. Everywhere. Yes. God is omnipresent. Yes, ma'am. Wait, some announcement is going on. So, let me close it. God is omnipresent, isn't it? So, have you seen that some people, if they are not happy, they think that नहीं भाई उस मजार पे जाने से शायद हमारा भगवान सुन लेगा, अल्लाह सुन लेंगे। आप गए ना मजार के ऊपर? बोलिए। तब तो नहीं। यस मैम। हाँ, फिर पता चला कि वो किसी काजी साहब ने सोचा कि हम जो है भैरव बाबा के टेम्पल में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान से पूजा कर लेते हैं, कुछ मांग लेते हैं, कुछ अपने दुखों को कम कर लेते हैं। चले गए ना भैरव बाबा के पास में? बोलिए। हाँ, यस मैम। तो भगवान का क्या है? वो तो एक शक्ति है, उसको आपको मानना ही मानना है। हाँ, ये किन लोगों में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो everyone is free to propagate any religion. Now, freedom to every religion institution to manage its own affairs in matters of religion. सभी धर्मों को ये अधिकार है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल रहे। Can you have some example of a religious institution? I have. If you have, tell मैम me. डीएवी खुद है। मैम इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ था।
और नहीं धार्मिक इंस्टीट्यूशंस का बात कर रही हूँ। Yes, ma'am. यू नो दिस बौद्ध धर्म का अभी भी हमारा विपासना सेंटर चलता है सारे जगह पे। बौद्ध धर्म वालों का आज भी आप बौद्धिस्ट। देखोगे कि हाँ बौद्धिस्ट, जैन, बौद्ध, तो हमारे हिंदुओं का भी कोई होगा कहीं पे, वाराणसी और या फिर आपका चले जाइए आपका वृंदावन, बहुत सारे जगह में हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। वो अपना पर्सनल लेवल पे सारे लोग अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं रहता है। स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी सच पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये नहीं है कि भाई हमारे बौद्ध धर्म वाले लोग आकर इतने सारे कर रहे हैं, और आप उसमें देखोगे कि नेपाल, चाइना, इथियोपिया से लोग आकर के उसमें धर्म प्रचारक बने, तो क्या आप उनसे टैक्स लोगे? आर यू गोइंग टू टैक्स फ्रॉम देम? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. नो। No, सो ma'am. इन सेम वे राइट को इफ छीन लेंगे अगर लिए तो। हाँ, अब जैसे कि हमारे ये गुरुद्वारे के पंच प्यारे निकलते हैं, वे लोग जुलूस निकालते हैं, है ना, गुरु नानक जयंती के समय या उस समय भंडारा करते हैं, और वे लोग ये करते हैं, क्या बोलते, चंदा भी लेते हैं, कहते लंगर खिलाने के लिए, है ना। तो Yes, इस तरह ma'am. से चीजें, तो क्या गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेते हैं? नो मैम। No, ma'am. No such things are there. Even government is not helping. अगर गवर्नमेंट को हेल्प करना है तो वो एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं कर सकते, इससे कंट्रोवर्शियल पैदा हो जाएगा। आप जिनको जैसा है आप कर सकते हैं। गर्मी की मौसम आती है, वे लोग पानी पिलाते हैं रोड पे, Yes, ma'am. हाँ सारी चीजें करते हैं। कोरोना टाइम में If we go to Mask भी Delhi, if we'll go to Bangalore, if we'll go to Mumbai, if we'll go to some other places, no, sometimes you will feel that you will go to have lunch and dinner in langar. कि गुरुद्वारे आए हैं, आज हमने वहीं लंगर खाना है, खाना आज उधर ही खाना है हमने, ठीक है। तो इस तरह से है हमारे चीजें, उसको हम विरोध नहीं कर सकते। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज होली और पार्शली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, इजंट इट? आपने कोई मैं तो इस बात पे नहीं बोलूंगी, हर इंस्टीट्यूशंस का अपना होता है, जैसे मिशनरीज स्कूल है ना, वहां पे कुछ मिशंस की बातें होती है, लोग कहते हैं डिसिप्लिन की बातें होती है। हमारा आर्य समाज का डीवी स्कूल है, तो वहां पर भी कुछ हवन की बातें होती है, जो हो सकता है सेंट कैरन्स में ना हो, सेंट माइकल्स में ना हो, केंद्र विद्यालय में ना हो। मगर क्या हमने कंपेल किया है बच्चों को क्या कि आप आकर के उसी स्कूल में एडमिशन लीजिए? क्या सरकार ने कहा या आपने कहा? नो वन, दिस इज ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। तो जब हमने हवन करना है, हम हवन कर रहे हैं। मिशन स्कूल्स वाले को अपने क्रिसमस की तैयारी करवानी है, कैरल्स करवाना है, तो क्या उसको कोई रोकने जा रहा है या किसी ने जबरदस्ती करवा लिया? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. किसी ने नहीं कराया जबरदस्ती। किसी ने नहीं। Have you met any Carmelite or Notre Dame student? Yes ma'am. Those who are Yes, ma'am. Hindu, but they don't know how to sing the carols. They don't know Yes, how to ma'am. sing. हाँ, isn't it? So ऐसा नहीं है, कोई भी चीजें जबरदस्ती नहीं होती है, एंड चीजें इसी तरह चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Ma'am, I have a doubt. या टेल मी। मैम अभी हाल में ही हुआ था कि दो मुस्लिम मैन आके और मंदिर में ही पढ़ लिए थे नमाज, तो हाँ। मैम उन लोग को अरेस्ट कर दिया गया था। हाँ हाँ, तो मैम ये भी तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ही आता है, लेकिन वो दूसरों राइट के टू धर्म में फ्रीडम में आके आता है। कर तो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर उस चीज को सामने प्रूफ कर दिया जाएगा कि बात नमाज पढ़ने की नहीं थी, रूल और रेगुलेशन होता यहाँ है। पे हिंदुओं के सेंटिमेंट पे अगर कहीं पे गलत हो रहा है, अगर हम if we are allowing the Muslims, the particular religion, to say their namaz in the front of railway station, Patna station, फ्राइडे के दिन अगर वे लोग रोड में नमाज पढ़ते थे तो ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होता, तो हम कोई रोकने नहीं दिया, क्योंकि फ्रीडम है रिलीजन का।
Sikhs, they are not wearing helmet, they are wearing pagdis, isn't it? They are allowed to wear the pagdi and they are not allowed compelled to wear the helmet. So if they are Muslims, they are going to Hindu temple, then why they are going and saying namaz there? They can do Hindu prayer, है ना? वो Yes, टेम्पल में जाकर के अजान क्यों पढ़ेंगे? तो ये तो इंटेंशनली वे लोग गलत कर रहे हैं ना. अगर वे मुस्लिम है तो वो वहां पर आकर के ये करिए, हिंदुओं का हाथ जोड़ करके या उनकी भजन कीर्तन गाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग टू चर्चेस, हम लोग क्या करते हैं? नहीं आते हुए भी हम लोग क्रॉस वाला हाथ घुमाते हैं ना. Yes, ma'am. गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम सर को ढक के जाते हैं, Yes, कपड़े ma'am. सर पर रुमाल डालते Yes, हैं ना. Yes, ma'am. उससे तो आपको वो मंदिर अपने गुरुद्वारे में आने नहीं देता. तो थोड़ा मंदिरों का अपना नियम कानून है. अगर हम हवन करने बैठते हैं तो अपने हाथ को धोते हैं. और वहां जोड़ के बैठते हैं. आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं होता है. तो हमने मूर्ति पूजा कभी किया आर्य समाज में? No, ma'am. बोलिए. No, ma'am. तो कुछ नियम कानून को तो मानना पड़ता है ना. yes, ma'am. Isn't it? ma'am. If you go to churches, sometimes in some festival they give the sugar lumps. Sugar वाला एक lumps देते हैं वो लोग खाने के लिए. तो you can't deny. They are वो प्रसाद के रूप में होता है तो उनको भी खाना पड़ता है आपको. फिर आप आए हो तो आपको खाना पड़ेगा. हम मजार पे जाते हैं तो चादर चढ़ाते ही हैं हिंदू हो करके. तो अगर कोई हमारे हिंदू के टेंपल में आ रहा है तो वहां नमाज तो नहीं पढ़ना चाहिए. सेंटिमेंट्स को नहीं टच करना चाहिए, इसलिए अरेस्ट किए गए थे. ठीक है, समझ गए बेटे? हाँ, सेंटिमेंट्स को नहीं टच करना. इफ वन इज शुड नॉट टच द सेंटिमेंट्स. नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. Read करना है क्या मैम? नहीं, बताओ क्या होता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में? क्या मैम ये जो होता है इस राइट के तहत क्या होता है कि कोई भी कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना या किसी उसका प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार जो होती है वो गारंटी लेती है. मैम सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार. अब भाषा का भी अधिकार, हम देखते हैं कि अगर कुछ बोलना नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर अगर साउथ इंडियंस आर देयर या मिथिलांचल या बंगाली या भोजपुरी या कोई भी भाषा, तो आप देखते हो ना कि वो लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी भाषाओं को बोलते हैं. तो वो उनको बचाना है. ये थोड़ी है कि आपको नहीं बचाना है. हाँ, सीखना है, बचाना है. जितना आप बचा सको अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, यही है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है. ठीक है. और कभी भी अपना मातृभाषा तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए. सेकेंड है, द माइनॉरिटी विल बी गिवन असिस्टेंस बाय द स्टेट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर. इसीलिए हमने गवर्नमेंट इज अलाउइंग द पीपल ऑफ माइनॉरिटी टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. बल्कि सरकार ने कहा है कि आप अगर माइनॉरिटी के हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, तो आपने अपनी इंस्टीट्यूशन खोलिए, मिशनरीज खोलिए, आप उसके बढ़ावा करिए. किसी ने नहीं रोका है. Yes, ma'am. मगर किसी को हार्म मत करिए. डोंट ट्राई टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी ह्यूमन. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या बताओ? मैम इसमें ये होता है कि आप लोग को अपना फंडामेंटल राइट ठीक से यूज करने के लिए मिल रहा है या नहीं. मैम इसमें उस चीज का राइट है कि आप कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसका कंप्लेन कर सकते हैं. यस, अगर आपको लग रहा है कि कोई अगर आपके राइट वायलेट कर रहा है, हाँ, तो आप हाई कोर्ट और ये सब जगह में जा सकते हो. The fundamental rights protect the citizen against the misuse of power by the government or the some institution or individual. कोई अगर सरकार किसी स्टेट में आपके अधिकारों का वो हनन कर रहा है, या कोई धर्म वाले लोग कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है, तो इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो. Therefore the fundamental right already ये प्रोटेक्ट किया हुआ है. आप तुरंत जा सकते हो कि भाई इस तरह है ना.
Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In case a fundamental right is violated, one can move to court of law and seek justice, but our fundamental rights are not absolute or unlimited, isn't it? The Constitution has imposed certain restrictions to check the abuse of these rights. Besides, the state is allowed to impose some reasonable restriction in the interest of public order, decency and morality, etc. देखिए, सरकार और कोर्ट तो प्रोटेक्ट कर रही है, मगर इसका कुछ डिसेंसी और मोरालिटी भी है। आपको कोई भी चीज के लिए बियॉन्ड लिमिट नहीं जाना है। चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई दिस इफ टू मुस्लिम फेलोज आर गोइंग टू टेंपल एंड दे आर डूइंग अजान देयर, तो आई विल टेल यू दिस इज नॉट द मोरालिटी, दिस इज नॉट द डिसेंसी। कैन यू, एम आई राइट और रॉन्ग, टेल मी? You're right, ma'am. Ma'am, you're यस right. यस। अगर आप जाकर के मस्जिदों में भजन कीर्तन करने लगेंगे तो दुख पहुंचा, अगर ह्यूमन बीइंग को दुख पहुंच रहा है तो वो गलत है ही। तो इसलिए सरकार भी तभी तक साथ देगी अगर आपके डिसेंसी और मोरालिटी को अगर क्रश हो रहा है, तब सरकार जरूर सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी, कोर्ट भी सुनेगा। ठीक है। ये ना रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोग ने सोच लिया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं नहीं करना है। मैम 5 रिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ना? करना है, यस मैम। ये तो आएंगे नहीं एग्जाम में। If you want to fight rights, the power of issuing rights is given to the Supreme Court to ensure the enjoyment of rights by the people and to restore their rights in case of any violation. The 5 types of rights are कौन-कौन से? Habeas corpus, which means unlawfully detained. पढ़ो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। Yes, ma'am. Habeas corpus, which means an unlawfully detained person may be produced before the court to find out whether the detention was legal or not. It is the most valuable right for the protection of personal liberty. Mandamus is issued when a public servant has failed to perform a duty. In such a case, the court orders the concerned official to perform the duty not performed earlier. Prohibition means to prohibit or forbid. This writ is normally issued by a superior court to the lower court asking it not to proceed with a case which does not fall under its jurisdiction. Quo warranto is issued to restrain a person from acting in a public office to which she or he is not entitled. Certiorari means to be more fully informed of. If a superior court wants some additional information or record from a lower court to enable itself to deal with the case more effectively, this right may be used. I doing one request. Why don't you remember such 5 rights, which is very important in your day-to-day life, and you are a growing student, so you must know. ये नहीं होगा कि अगर if anyone's dad is saying कि बेटा बाहर जा रहे हो ना, मार खा के मत आना, मार खा के मत आना और मार के ही आना, ठीक है? इस तरह की बातें होती है। तो आप गलती से अगर किसी को कुछ ज्यादा ही मार दिए तो क्या होगा? क्या कानून आपको नहीं है, आपके लिए नहीं होगी? बताइए। यस मैम होगी। हाँ, मैम होगी। तो आपको भी कुछ जानना होगा कि चाहे वो मम्मी पापा बोले या कोई भी बोले, तो आपको अपनी डिसेंसी कैसे मेंटेन करना है, आपको अपनी मोरालिटी कैसे मेंटेन करना है, ये आपको सीखना होगा। तो ये चीजों को आपको याद करना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको चीजों को समझना है। हम इसीलिए ना पढ़ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, ये आपको अपने लिए काम देगा। इफ यू आर इन क्लास 8, यू मस्ट नो सर्टन थिंग्स। मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस में किसी के पेरेंट्स हैं, तो क्या उनके बच्चे कोई भी क्राइम कर सकते हैं? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. हाँ, नो तो जो करते हैं उन पे मत जाइए। आप अभी यहाँ पर कोई मुझे ये एग्जांपल मत देना कि मैडम देखे ना, उनके फादर जो है ना चीफ मिनिस्टर थे और वो उनके रिलेटिव थे तो उन्होंने ये काम किया, हम क्यों जाएं गलत बात पे? बोलिए। इफ एनीवन्स फादर इज ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो क्या वो बिना, उनके बच्चे क्या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे? नो मैम।
No, ma'am. नो मैम, उनको तो ज्यादा रूल फॉलो मैम। करना पड़ेगा। और तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो इसको केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, इसको जो है एकदम अपने इम्पोर्टेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। हम डेली लाइफ के लिए भी। यस मैम। नाउ टेल मी, रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, बताइए। मैम कुछ certain First, to restrictions है prevent जैसे spread of infectious disease, the free movement of people can be restricted. Second, freedom to practice any profession does not mean doesn't to take up gambling, smuggling, hoarding, hoarding or any other profession which is which injurious is and injurious or hazardous to the society. Listen, my Nobody student, can my keep student, I want to tell you something. I think so before ending the class, this will be my homework for all of you, and I will be asking a name which is very मतलब ऐसा नाम मैं जरूर बोलूंगी जिसको मैंने कभी बोला नहीं होगा। अब मैं बोल देती हूँ कुछ नाम, जैसे प्राची, गरिमा, like this. I want to know what are the restrictions on fundamental rights you have to explain tomorrow. This will be my homework for all of you. एकदम अच्छे से इसको पढ़ के आओगे, ठीक है। yes हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टडीड 6 फंडामेंटल राइट्स हमने, अब आपको 6 फंडामेंटल राइट्स एकदम फिंगर टिप्स पे आते होंगे। Yes ma'am. किसी को Yes. कुछ नहीं आता तो 3 तो जरूर आता होगा, Yes 3 ma'am. तो जरूर आता होगा। Yes, ma'am. मैंने कल ही याद किया है। हाँ, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी कि नहीं 6 के 6 नहीं आते तो 3 तो जरूर आते होंगे ना। Yes ma'am. Yes, ma'am. तो 6 आना चाहिए, ठीक है। Having studied the 6 fundamental rights, we should remember one very important point about all of them, that they are not absolute. मतलब क्या? What is the word meaning of absolute? मैम मतलब कि मैम जरूरी ना उनपे मैम होना। certain restrictions है मैम वो पूरे तरीके से मैम सही नहीं है। नहीं, सही का बात नहीं है, absolute का बताओ। मैम निरपेक्ष। हाँ, और बताओ। मैम निरपेक्ष। अच्छा ठीक है, और बताओ एब्सोल्यूट का और मीनिंग बताओ क्या होगा। मैम पूर्ण। मैम पूर्ण। हाँ, पूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है? इट मीन्स दैट सम रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड अपॉन देम टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर। There is some restrictions on them without